प्रैक्टिकल सेक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे व्हाट्सएप में रिक्वेस्ट किया गया है, सर आज का क्लास में नहीं मीन्स या नहीं, आज वाली क्लास में 12 तारीख को फिर वही कल वाली क्लास बीबीए फॉर्म कैलकुलेटर फॉर्म दोबारा रिवीजन करने के लिए कहा। तो उन लोगों का रिक्वेस्ट के अनुसार आज मैं वही फॉर्म पहले समझा दूंगा कैलकुलेटर, फिर बाद में हम नया कंट्रोल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो नया कंट्रोल्स मींस we have some more controls, form controls like combo box, check box, radio button, scroll bar, spin button, toggle button, बहुत कंट्रोल्स है। तो अगर मेंस इसका जल्दी से जल्दी डिस्कस करने के बाद बच्चा हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर फिनिशिंग calculator class we have time, then we will discuss the remaining new form controls like combo box, list box, check box, option box, like that, scroll bar. Okay, so now friends, I want to share last class form you want to share the time also. मैं समय को बर्बाद नहीं करना चाहता, I want to save my time. So this is the last class means designing. If anybody having some doubts or suppose अभी भी किसी को समझ में आए तो no problem, कम समय के अंदर दोबारा एक नया फॉर्म लेके फिर हम मतलब डिजाइन करेंगे। लेकिन एक बार दिखाना चाहता हूँ आप लोगों का फ्रेंड्स, developer, then Visual Basic. This one is the Wikipedia Project Explorer, then forms. After that, user form 1. See here, please, we are inserted one form through developer and Visual Basic insert menu. Then after that, change the properties user form to calculator. Then we are inserted one form control label. Through this label properties, we are changed that label 1. Then after that, we are text box to our form. Then after that, remaining all these are 16 button. We are taking one button and fixed one size. Then after that, we are simply making the copy paste, and through this caption button captions, we are changed button 1, button 2, button 2. Then after that, we are adding the code. This is the procedure. So some main funda means, sir, we are not able to understand the means first number and second number. Okay, so that purpose, friends, please look at here an explanation. Okay, look at here, friends. I was in font size. I want to increase this one for visible purpose. Calculator, suppose I merged it, become making one single cell like a text box. This one, adding one border. This is my text box. You please think it. In this text box, we are doing suppose some experiment. Calculator operations number 1 plus number 2. In place of that addition plus, you can use subtraction purpose minus, multiplication purpose star, then division. Okay, so numbers are different, but now we are discussing about the main principle backend. Okay, so suppose if you are entered two numbers with an operator may be addition, subtraction, multiplication, division, whatever. Our user will want to compute some operation, multiplication or division. First of all, he will try to one first number
here 1 2 3, then he want to do some addition और सब्ट्रैक्शन। एक नंबर सबसे पहले टाइप करेगा, फिर टाइप करने के बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी है, तो वो ऑपरेटर को टाइप करते हैं। अब ऑपरेटर को टाइप करते समय पर बटन के द्वारा ऑपरेटर को टेक्स्ट बॉक्स का अंदर डिस्प्ले करने से पहले जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एंटर किया गया पहली नंबर को हम ए, फर्स्ट नंबर ए मान अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। ए का अंदर सपोज नंबर 1 नंबर 2 ना, तो इसमें क्या है 1 2 3 टाइप किया 1 2 3। अब प्लस सिंबल टाइप करते समय पर यानी प्लस बटन पर क्लिक करते समय पर जो पड़ा हुआ अंदर उसको हम ए का अंदर ट्रांसफर करना, कैसे ए इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए val वैल्यू फंक्शन को हमने काम में। फर्स्ट लेंथ पता करने के लिए क्या किया हमने, L1 इज इक्वल टू len नाम से एक फंक्शन MS Excel में स्ट्रिंग फंक्शन, इट कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। तो दिया गया स्ट्रिंग का अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को डिफाइन करेगा, गिनती करेगा, काउंट करेगा। तो अब टेक्स्ट को हमने अलग लिया नहीं, टेक्स्ट बॉक्स का अंदर पड़ा हुआ टेक्स्ट को डायरेक्टली हम लेंथ पता कर रहे हैं, len ऑफ txt_x1 डॉट टेक्स्ट। फर्स्ट लेंथ, फर्स्ट पहली नंबर पता चल गया। अब मतलब क्या है, प्लस बटन में पर जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं उसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 तो आसान, 1 टाइप करने तो हमें 1 आना चाहिए, 2 टाइप करते समय पर 2 आना चाहिए। सो नाउ फ्रेंड्स, अब लेंथ 1 हो गया, नंबर पता चल गया है, ऑपरेटर को भी हम स्टोर कर रहे हैं। सो ऑपरेटर प्लस आ गया, तो फिर प्लस सिंबल पर इन्होंने क्लिक करके तो हम आया प्लस एडिशन ऑपरेशन के लिए, तो इसलिए उस टाइम हम एक हमारा ऑप्शन नाम से एक वेरिएबल लिया है, ऑप्शन इज इक्वल टू 1। That means I am defining if user want to do some addition operation, then first option is number 1। अगर कंप्यूटर ऑपरेटर यूजर अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस जोड़ने के लिए प्लस सिंबल प्लस बटन पर क्लिक किया है तो ऑप्शन पहली ऑप्शन मान के चलते हैं, तो ऑप्शन 1, ऑप्शन के अंदर वैल्यू 1 पास कर लिया है, फिर जो टाइप किया गया नंबर को A1 में ट्रांसफर कर दे वैल्यू ऑफ टेक्स्ट। बस इतना ही था, हर प्लस के लिए तो किया हमने ये, इसी तरह माइनस का जगह पर ऑप्शन 2 करना था, बाकी ये दोनों सेम। फर्स्ट नंबर टाइप करने के बाद सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम नंबर को अलग करना है, पहले नंबर को लेंथ तो पता करना है, सिर्फ चेंजेस कहाँ करने हैं, हम माइनस बटन पर क्लिक करके आए हम लोगों ने ऑप्शन वैल्यू 2 करना। Okay, try to understand the main fundamentals, basic principle पता मतलब समझने के। अगर suppose want to do some multiplication x, then सिर्फ ऑप्शन 3 लेंथ वगैरह ठीक किया है। फिर अगर डिवीजन करना है, डिवीजन सिंबल मींस स्लैश सिंबल पर टाइप किया है तो बटन पर ऑप्शन वैल्यू 4 करेंगे हम, लेंथ पता कर रहे हैं ये वैल्यू। अब ऑपरेटर पता चल गया, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट नंबर पता चल गया, ये तो पहली स्टेज पर। लेकिन इस बटन को टाइप करने के बाद फिर एक चीज भूल गया, फिर साथ साथ यूजर को पता होने के लिए यूजर ने करना चाहते हैं, ये बात बताने के लिए क्या किया हमने, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नंबर का साथ उस पर्टिकुलर ऑपरेटर को भी ही डिस्प्ले करना है। उस ऑपरेटर को कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं हम, txt_box1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ऑलरेडी टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट बॉक्स 1, देन उसके साथ मतलब कंटिन्यूटी के लिए एंड ऑपरेटर, सबको पता है कॉन्करेंट ऑपरेटर, फिर जिस ऑपरेटर को हमने टाइप करके आया प्लस ऑपरेटर को टाइप करके आया तो फिर प्लस को जोड़ना है, यानी अब 1 2 3 टाइप किया हमने,
प्लस बटन पर टाइप करते समय पर पहली टेक्स्ट बॉक्स का अंदर पड़ा हुआ वैल्यू को पहली नंबर मान लिया हमने, एक अंदर ट्रांसफर कर लिया, पहले नंबर का लेंथ पता कर लिया हमने, L1 का स्टोर किया है, फिर साथ साथ पहली नंबर का साथ जो ऑपरेटर है उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। जब इस लाइन को एग्जीक्यूट करते समय पर when the VBA will execute this fourth line in this plus operator, then what happen in this number 1 2 3 plus symbol will be appear. Until then the reach to the fourth line, these three things are executed. चौथी लाइन पर चौथी लाइन तक आने से पहले क्या करते हैं, इंटरनली प्लस सिंबल पर क्लिक करते समय पर ऑप्शन वैल्यू 1 एडिशन के लिए ट्रांसफर करेगा वेरिएबल के अंदर, लेंथ पता करेगा, हो सकता है सिंगल डिजिट टाइप के होगा, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट्स, उसका लेंथ L1 में रखेगा। फिर जो भी नंबर पड़ा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर उसको पहली नंबर मानने के लिए ये इज इक्वल टू वैल्यू मींस टेक्स्ट को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करके ये का अंदर ट्रांसफर। अब देन ये तीनों काम होने के बाद ऑपरेटर को टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नंबर का साथ डिस्प्ले करते हैं। द सेम वे इसी तरह अगर हमने माइनस पर क्लिक करके आया तो सेम ऑपरेटर ऑप्शन वैल्यू 2 हो जाएगा, लेंथ पता करेगा, फर्स्ट नंबर को अलग रख के ए में रखेगा, फिर नंबर का साथ टेक्स्ट बॉक्स में चौथी लाइन पर आते समय पर जब ये प्लस से माइनस टाइप किया ना तो माइनस दिखाई देगा। इसी तरह अगर मान लीजिए यूजर ने मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई किया है, सो मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई किया तो फिर ऑप्शन 3 मान जाता है। ये सारी चीज कॉमन है, लेकिन अब नंबर का साथ आपका स्टार सिंबल या तो इंटू क्रॉस सिंबल जो भी है ये डिस्प्ले करते हैं। चौथी ऑप्शन करते समय पर ऑप्शन सिर्फ 4 माना जाता है, बाकी दोनों सेम लेंथ पता करेगा, फर्स्ट वैल्यू को सेपरेट करेगा, लेकिन स्लैश करके हम आया तो ये फर्स्ट 4 ऑपरेटर का ये कोडिंग, जो 4 ऑपरेटर का कोडिंग मींस 4 बटन है ना, प्लस माइनस स्टार डिवीजन। अब बचा क्या, फर्स्ट नंबर पता चल गया, ऑपरेटर पता चल गया, केस से हम हैंडल कर रहे हैं। सेकेंड नंबर पता होना है, बी नंबर। अगर मान लीजिए फर्स्ट केस +1 प्लस ऑपरेशन के लिए नंबर तो क्या करके आया ना प्लस, अब वैल्यू टाइप करनी है एनी नंबर, ओके, तो 1 2 3 5 6 4 5 6 एक 5 बटन 6 बटन टाइप करने के बाद रिजल्ट पर्पस पर क्लिक करते रहते यूजर करेगा, दोनों नंबर एंटर करने के बाद ऑपरेटर देखने के लिए इज इक्वल सिंबल पर क्लिक करेंगे। अब ये तो टाइप हो गया, और सेकंड नंबर 4 5 6 जब रिजल्ट मींस इज इक्वल इसलिए अब इज इक्वल बटन के लिए रिजल्ट के लिए कोडिंग क्या लिखना है हमें, हमने ये लिखा है केस ऑप्शन का सहायता हम आया है, पता नहीं यूजर ने कौन सी ऑप्शन को सेलेक्ट किया, केस ओपीटी ऑप्शन देन केस 1 मतलब प्लस ऑपरेटर क्लिक किया ना उन्होंने, 2 नंबर एंटर करते समय पर इज इक्वल पर क्लिक करेगा, 2 नंबर्स मतलब एक नंबर प्लस ऑपरेटर देन दूसरे नंबर टाइप करने के बाद करेगा, इज इक्वल पर क्लिक करने के बाद मतलब इस कोडिंग में आ गया, सेलेक्ट केस तो पता चल गया ऑपरेटर 1, सो केस 1 में सॉरी इसमें केस 1 का अंदर इसी में रिजल्ट के लिए फर्स्ट केस अप्लाई करने से पहले बी को सेपरेट करना है। सो बी को सेपरेट करने के लिए क्या किया हमने, str नाम से एक वेरिएबल को लिया है, सो str यानी स्ट्रिंग इज इक्वल टू तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ पूरा मैसेज को स्ट्रिंग में ट्रांसफर किया, तो कैसे टू textbon डॉट टेक्स्ट अंदर हमने ट्रांसफर किया है, पता चल गया। अब हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, बी सेकंड नंबर को फाइंड आउट करना है। सेकंड नंबर को फाइंड आउट करने
जो लेटेस्ट पहली लेंथ पता चल गया, अब नंबर बढ़ गया, सो L2 लेंथ 2 पता कर रहे हैं हम। कैसे? L2 इज इक्वल टू LEN ऑफ STR। सिंपली क्या कर रहे हैं, इसका लेंथ पता कर रहे हैं हम लोग, लेंथ आ गया, मतलब नया, आफ्टर एंटरिंग द प्लस ऑपरेटर देन सेकंड नंबर, तो पूरा लेंथ आ गया इधर। फिर आने के बाद हमने क्या किया, बी नंबर को सेपरेट कर, इज इक्वल टू न्यूमेरिक में कन्वर्ट फंक्शन। अब इसको मिडिल, ये नंबर लेकर आने के लिए बीच वाले नंबर को फिर क्या करते हैं, हम मिड फंक्शन को काम में लेते हैं। तो मिड फंक्शन को काम में लेते समय पर मिड, लेफ्ट, राइट, सेंटर, टेक्स्ट फंक्शंस, अभी मैं अगर जरूरत हो तो एक्सप्लेन करूँ। तो मिडिल स्ट्रिंग को लेने के लिए, सो मिड का आगे क्या लिखना, स्ट्रिंग लिखना है। सो स्ट्रिंग क्या है हमारा, स्ट्रिंग STR, टेक्स्ट बॉक्स का अंदर पड़ा हुआ पूरा नंबर ऑपरेटर का साथ फाइनल टेक्स्ट को हमने स्ट्रिंग में STR स्ट्रिंग का अंदर ट्रांसफर किया, तो वो स्ट्रिंग इधर लिखा मैंने। तो मिडिल फंक्शन में रूल ये है, फर्स्ट पोजीशन बताना पड़ेगा, मिडिल टेक्स्ट कहां से कंसीडर करना है, मुझको कहां से करना है, सेकंड नंबर को फर्स्ट डिजिट से। सेकंड नंबर फर्स्ट डिजिट कहां पर, इधर ऑपरेटर का आगे। सो ऑपरेटर से पहले क्या था, ये वाली, ये L1 फर्स्ट नंबर तो हो गया, लेंथ 1 पता चल गया। अब बीच में एक ऑपरेटर, मतलब L1 का साथ एक जोड़ना पड़ेगा फिर इधर आने के लिए, लेकिन फिर इधर आने के एक जोड़ दिए तो ऑपरेटर का पोजीशन पर आ गया, फिर ये दूसरा जोड़ना पड़ेगा। यानी आप प्लीज कंफ्यूज मत हो, जिधर मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 क्या हुआ, L1 प्लस सिंबल एक है, प्लस अगले डिजिट पर, फोर्थ नेक्स्ट डिजिट पर जाने के लिए और एक पोजीशन, मतलब क्या हुआ 2। यानी L1 का साथ दो स्पेसेस, दो मतलब L1 को दो संख्या बढ़ाने के बाद फिर हमारा सेकंड नंबर का पोजीशन इंडिकेट करने लगा, पता चल गया कहां से हम सेकंड नंबर को माने। यानी स्ट्रिंग स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, L1 प्लस 2। दैट मीन्स क्या हुआ, L1 फर्स्ट नंबर हो गया, प्लस ऑपरेटर के लिए एक, देन सेकंड नंबर का फर्स्ट पोजीशन के लिए दूसरा डिजिट, L1 प्लस 2 करने के वजह से नंबर का फर्स्ट डिजिट पोजीशन दिखाई दे रहा है, फिर इंडिकेट कर रहे हो। ओके, in English medium students, please try to understand. Now I am finding the second number B through string function mid function. So first of all, I transfer the entire number from the text box into variable str string. Then after that, I am finding the length to ln of str. Then after that, I want to separate the second number B. So that purpose B is equal to value means string को number में convert करने के लिए mid function is used to consider the middle of the string. So I want to separate the second number from entire the string. So second number position mid function's rule is, syntax is, mid syntax is, please look at here, mid str means string, confusion मत होइए, string, then starting position means number, but number you can mention the starting position in number, then number of characters, मतलब उस पर्टिकुलर पोजीशन से आपको फिर कितना कैरेक्टर्स को कंसीडर करना है। ये मिड फंक्शन का रूल ये बताते रहते हैं, मेड स्ट्रिंग सोर्स ओरिजिनल स्ट्रिंग, देन आफ्टर दैट स्टार्ट मिडल में कहां से, फिर उस पोजीशन से कितना कैरेक्टर्स करना, तो दैट इज द रूल। So ये mid का front में value function is used to the convert the string into the numeric value. So mid is considered to the middle string. So that's according to the syntax, our string is, then first starting position is length 1 पहली number, then after that 2 digits, one operator, second one is the second digit position. So L1 plus 2 second number starting position will indicate L1 plus. Then after that means second number first position to कैरेक्टर, वो कितना कैरेक्टर्स को कंसीडर करना है, L2 पूरा लेंथ पता चल गया हमें, माइनस L2 माइनस L1 प्लस 1,
क्योंकि ऑपरेटर को हमने इसमें जोड़ दिया है। सो ऑपरेटर को जोड़ने के वजह से उसको क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आप उस टाइम लास्ट टाइम क्यों प्लस नहीं किया, ब्रेडमास रूल का अनुसार, ब्रेडमास मैथमेटिक्स, प्लस ऑपरेटर फर्स्ट देन माइनस priority is next. So due to that reason I cannot mention the another bracket. फर्स्ट पहली एडिशन ऑपरेशन को फिल करेगा, फिर बाद में सब्ट्रैक्शन को। चलिए, तो आपको क्लियरिटी बनने के लिए L1 + 1, L1 ऑलरेडी पता चल गया है, इसका एक ऑपरेटर का संख्या एक बढ़ाने के बाद असली जो डिजिट्स 3 माइनस करेगा, मैं 3 तक 2 डिजिट्स एंटर कर दे तो 2 डिजिट्स संख्या मेन फंडा है के लिए कोशिश कीजिए। प्लीज आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल माय ट्रेनीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सेपरेशन ऑफ द बी नंबर। ओके, आई कैन गिव द एक्सप्लेनेशन हियर। look at is equal to you can close the proper brackets. One is internal str के लिए one bracket and mid function के लिए another. Now what happened here? So how to separate this one? First, str is the original string and 10 number 2 numbers plus operator. Then L1 already you are find out. You are adding 2 digit 2 space operator purpose second number first position, मतलब सेकेंड नंबर फर्स्ट पोजीशन कंसीडर करने के लिए L+2। देन उस जगह से कितना डिजिट्स को सेपरेट करना है, मिडिल स्ट्रिंग। सो जितना भी इनका 1 2 3, सो वो 3 कैसे आएगा, पूरा एंटायर टोटल लेंथ माइनस द फर्स्ट L1 प्लस दिस ऑपरेटर, सो L1 + 1। ओके, सो L2 - L1 लिख सकते हैं, लेकिन बीच में प्लस ऑपरेटर भी एक गिनती में है, तो इसलिए +1 करने के वजह से मतलब पूरा लेंथ में से इतना तक प्लस तक जो भी लेंथ आएगा उसको माइनस कर दे। बचा हुआ क्या, वही पोजीशन, सेकंड पोजीशन। ओके, देन आफ्टर दैट B we are already having 2 values, first number A, second number B, then we can implement our operation. So select case 1, option case 1 है तो क्या करने के लिए, result is equal to simply A + B। अगर मान लीजिए केस 2 यूजर ने क्या किया है, माइनस सिंबल, तो ये तो प्रोसीजर सेम नंबर लेंथ वगैरह, तो माइनस सिंबल पर करते समय पर इतना तक कि बी तक भी सेम इज एंटायर प्रोग्राम, तीन स्टेटमेंट्स, the 3 statements are common, addition, subtraction, multiplication, but the actual thing two case operation means you are selected the minus operation, then result is equal to first number minus second number। case 3 option value 3 कब होगा, multiplication, so result is equal to क्या होना चाहिए, a star b, not into, in computer field we are using in place of x symbol star symbol, multiplication purpose। okay, so then case 4, that means you are selected the division of operation for division purpose, this one is where you can select this and select the result we are printing, so that purpose we are written text box 1.text is equal to result, result, this one is and sub। ये कोडिंग किसके लिए लिखा है, is equal to button result के लिए। you want to generate display the result is equal to button, so that is equal to button is used to result, so before directly display the result we are doing some exercise, we are finding the second number B, then already you have first, then after that we are means executed implemented through select case option। if case 1 is there, that means user is selected the plus operation, if case 2 is there minus operation, case 3 is there means बस यही प्रोग्राम, this is the अब I think you people sir understand, मैं आशा रखता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मैं एंटायर अंग्रेजी में समझाया तो हिंदी में जो सुनने वाले के लिए, देखिए फ्रेंड्स इतना तक सबको पता चल गया है फर्स्ट नंबर कैसे आ रहा है। ऑपरेटर पहले टाइप करने से पहले प्लस माइनस डिवीजन
नहीं तो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो पहली नंबर माना जाता है, वैल्यू में कन्वर्ट करके ए मिलेगा। इन फ्यूचर बी नंबर निकालने के लिए L1 मान लिया लेंथ फंक्शन का सहायता से, बस और कुछ नहीं। प्लस सिंबल पर क्लिक किया तो ऑप्शन 1 मान के आगे बढ़ा। फिर साथ साथ कैलकुलेटर में शो करने के लिए जो ऑलरेडी पड़ा हुआ नंबर के साथ प्लस सिंबल को टाइप करना, माइनस है तो माइनस डिस्प्ले करना, बस यही है। अब रिजल्ट निकालते समय पर इज इक्वल पर क्लिक किया तो जो पूरा दोनों नंबर प्लस ऑपरेटर के साथ टोटल जो टाइप किया गया टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ समाचार को str वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर किया। एंटायर स्ट्रिंग का लेंथ पता कर लिया L2, पहले L1 फर्स्ट नंबर का था, एंटायर नंबर T सेकंड नंबर सेपरेट कर, please convert to the string into new is used to middle string of the given entire string। बड़ा स्ट्रिंग में से बीच वाली स्ट्रिंग अलग निकालना है तो मिड स्ट्रिंग फंक्शन का सहायता से हम कर सकते हैं। इसका रूल ये है सिंटेक्स स्ट्रिंग कामा स्टार्टिंग पोजीशन कामा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो हमारा स्ट्रिंग str का अंदर है, हमने ट्रांसफर कर लिया है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पूरा स्ट्रिंग को str में, कामा स्टार्टिंग पोजीशन कहां से कंसीडर करना है, फर्स्ट नंबर के L1 1 2 3 तक आ गया है, 3 + 1 ऑपरेटर के लिए, अगेन +1 सेकंड नंबर फर्स्ट पोजीशन के लिए, इसलिए L1 + 2 लिख रहे हैं हम। That is the starting position of the mid function। फिर उससे कितना 3 कैसे आ गया, इधर सपोज 3 L1 + L2 कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7, सो 7। अब इसके हिसाब से अगर इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो कैसे होगा, अब देखिए ऑप्शन तो 1 हो गया है, लेंथ L1 का अंदर क्या आ गया, दैट मींस डायरेक्टली। अब देखिए एग्जीक्यूशन 1 2 3 टाइप किया ना, L1 3 आ गया, L1 वैल्यू इज 3, ओके, ये वैल्यू इज इक्वल 1 2 3, फर्स्ट 1 2 3 टाइप किया, देन फिर बाद में क्या हुआ, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये प्लस सिंबल को डिस्प्ले किया, फिर इसके बाद प्लस सिंबल के बाद इतना तक हो गया ऑपरेटर प्लस टाइप करने के बाद। फिर बाद में क्या किया, कंप्यूटर ऑपरेटर यूजर वाज एंटर्ड इनटू द 4 5 6, 4 बटन पर क्लिक किया इन्होंने, 5 पर क्लिक किया, 6 पर क्लिक किया, फिर क्लिक कर 4 पर क्लिक करते समय पर 4 आ गया, 5 पर क्लिक करते समय 5, 6 पर क्लिक करते समय पर 6 आ गया, एंटर किया। फिर रिजल्ट देखने के लिए इज इक्वल पर क्लिक करते समय पर str इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 का अंदर क्या हुआ इनडायरेक्टली str इज इक्वल टू 3 + 4 5 6, ओके। एग्जीक्यूशन एक के लिए समझा दूंगा, टाइम वेस्ट। सो str इज इक्वल टू 1 2 3 + 4 5 6 हो गया। फिर होने के बाद अगर आपको समझाने के लिए क्लैरिटी के लिए मैंने क्या किया है इस तरह, फिर देन आफ्टर दैट L2 इज इक्वल टू लेंथ फंक्शन ऑफ str, तो str का अंदर क्या है, दैट इज इक्वल len ऑफ 1 2 3 + 4 5 6, द टोटल कितना 7। सो ड्यू टू दैट रीजन L2 इज इक्वल टू हमारा वैल्यू 7, L2 7 हो गया। तो जब L2 7 हो गया है तो क्या लिखा हमने, L2 की वैल्यू, अब P इज कंसंट्रेट हियर, दिस इज द फाइनल वन। P को कैसे निकाला, P इज इक्वल टू एज पर रूल के हिसाब से लिख रहा हूं मैं, वैल्यू ऑफ एंड देन 1 2 3 प्लस, ये है मेरा स्ट्रिंग L1 + 2, L1 में कितना 3 + 2 स्टार्टिंग पोजीशन कामा L2 माइनस L2 में कितना है 7, L + 1, L1 कितना है 3 + 1, ये ब्रैकेट्स हमने लिखा है। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, ये है ना 3 + 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या इसको कॉपी कर दूं, समझने के लिए कोशिश कीजिए स्टेप बाय स्टेप। वैल्यू मिड वैसे रहेगा, 3 + 2 कितना हुआ 5 हो गया, 7 - 3 + 1 कितना 4, तो मतलब ये बन गया है, ओके। और नेक्स्ट वैल्यू वैसे रहेगा, मिड वैसे रहेगा। अब आप देखिए फिफ्थ पोजीशन 1 2 3 4 5, 5 मींस इट विल इंडिकेट द 4, ओके, दैट इज द स्टार्टिंग पोजीशन। दैट मींस P क्या कर रहा है, ये फिफ्थ पोजीशन में क्या है 1 2 3 4 5 4 इंडिकेट करने लगा।
4 से 7 - 3 का मतलब कितना है 3, 3 डिजिट्स को कंसिडर करने के लिए कहा 4 1 5 2 6 3 यानी 4 इन तीनों को लेता है। अगर आप और भी स्ट्रिक्टली और एक स्टेप देखना चाहते हैं तो 7 - 4 के जगह पर 3 रहे। अब देखिए असली पोजीशन ये है मिड फंक्शन में स्टार्टिंग पोजीशन 5 5 मींस 1 2 3 4 प्लस हो गया 5 4 स्टार्टिंग पोजीशन 4 हो गया 4 से कितना कैरेक्टर्स लेना है 3 1 2 3 4 5 6 इसलिए 4 5 6 तो हो गया। अब केस ऑप्शन ऑप्शन क्या लेकर आया हमने ऑप्शन वैल्यू 1 क्या है ना हम लोगों ने 1 पढ़ा सो इधर केस वैल्यू के अंदर आते समय पर 1 हमारा सो केस 1 is equal to 1 both are equal condition is true here result is equal to a plus b a value पता चल गया 1 2 3 plus b value 4 5 6 so here so हमने इज इक्वल लिखने के वजह से अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट का अंतर ट्रांसफर करेगा। इन्होंने अपना जो भी कोडिंग कंप्लीट कर दिया तो फिर क्या करेगा जो इज इक्वल का आगे वैल्यू है ना इसको ट्रांसफर कर दिया इन्होंने रिजल्ट का अंदर 576 फिर एक बार ऑप्शन सेलेक्ट होगा तो बाकी केस ऑप्शन के अंदर नहीं जाएगा एंड सेलेक्ट इधर आ गया आने के बाद क्या टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट 1 इज इक्वल टू रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट मींस ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर किस लोकेशन की बात कर रहा है तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रिजल्ट क्या आना चाहिए आंसर क्या होना चाहिए रिजल्ट का अंदर कितना है 576 सो 576 डिस्प्ले कर okay this is the execution procedure now अब देखिए I saved it and closed it. If anybody want to this execution steps na then you can simply make it photo now अब देखिए our aim is we want to consider new one but I closed this one I opened another new workbook आप लोगों को कृपया मतलब समझाने के लिए I want to give an explanation within 5-10 minutes entire calculator will be designed quickly look at here so first friends please insert then user form okay then after that then properties F4 in caption please look at here calculator then simply you can change the font you want to complete quickly calculator I changed here then background color you can select any one of the color okay then I want to write calculator consider taken label A then through this properties caption I simply written here calculator calculator center purpose text alignment then you simply select the center option then result purpose text box and number entering also please this is my text box you cannot change anything then I want to means design the calculator na so 1 2 3 so 1 2 3 purpose last time you are me confused look at here I consider one button suppose this one then just in name देखिए logic name cmd command button 1 okay then caption 1 then I simply copy then paste अभी इसके साथ साथ करेंगे फिर paste again paste okay so now friends here then first of all one after 1 we want to type the 2
then 3. Okay, in that day we are already considered that calculator picture. So according to our calculator, so we want to design that one. I was sended that one na? I want to check that calculator picture in my VBA online class proof. Okay, so 1 2 3 ka pass mein kya nearby minus, so here caption minus. Please don't irritate and don't feel any boredness. You please simply look at here. Quickly we are designing with a proper step. So this 4, then after that right click, copy, paste. Okay, you can separate this one. Suppose this is the second one, hai na? These are the first one, so I moved here 1 2 3 last position. Then this is the second position. Then again I want to make it paste, copy paste na. Okay, so here 1 2 3, then after that F4 properties keys we want to do firstly 4, then 5, then 6, after that into symbol X, normal X, but in coding we are enter the star symbol. Then 7 8 9 caption, you can change the cap, click on the button and type the number. Then after that division symbol black here plus. Then we want to make it another duplicate, control V. Already I applied the copy paste, it is under process. So then I inserted here. After that please look at here, then here 0 last position, then after that is equal, then clear, this one is plus option. Okay, so my calculator design is finished within 2-3 minutes. Plus shift and plus. Okay, then after that coding. So I want to tell one thing. Last class we are discussing now, if you want to display, if you are pressing one way, so look at here, I simply typed here text box command. So textbox1 dot वन पर क्लिक किया हमने, 1 आना चाहिए. Okay, so then I want to go to the second one. I cannot change the here logical buttons names. Then you can change one 2 अगर मान लीजिए ये तो MD2 command button MD3. There is no role here. 6 practice purpose, then 7 names I am assigning CMD8 1 2 3 4 5. This one is not next 6. Okay, then 9 equal to also you are considered immediately that time CMD10 9. You can give any number remaining our purpose. This one 0 purpose CMD10 command button. Then suppose plus CMD11 CMD12
CMD13, command button 13, command button 14, CMD 14, then reset, command button 15, clear, command button 16. Now we are writing the coding to every button. So here, friends, so look at here. This one, if we are typing one will be appeared in the text box. The same way, we are copying, but difference between adding and direct type. उस दिन हमने text and symbol क्यों use किया है? Why you are and operator? I want 2 पर आना चाहिए. I want to display 3. बस enough. Suppose if I am click button number 3 will be displayed on the text box. I want to run my coding. No. Okay, look at here 1. But if I am typing 2, then what happened? 2 will be overwritten. In 2 will be replaced in the position of the 1. Look at here. If I am clicked here 3, then what happened? 3 will be replaced in the 2. So that is the individual. Now direct we are displayed one button direct on this text box. But to avoid, to overcome this problem, समस्या को हम दूर करने के लिए 1 क्लिक करते समय पर 2 बगल में आना चाहिए. मतलब 12 टाइप करना चाहता हूँ. 1 क्लिक किया 2 1 का पास में आने के लिए कोडिंग अलग लिखना है. डायरेक्ट सिंपल लिखिए तो क्या हो रहा? ओवरराइट. देखिए, my aim is I want to type 1 2 3 1 करना चाहता हूँ. But single. So that purpose in last. Suppose if I am typing, I am assuming some of the text is already available in my text box. So TXTBOX1 text sum is equal to sum plus I लिखते हैं ना इसी तरह. Text box 1 dot text is equal to text box 1 dot text, then and symbol ampersand concatenate operator जोड़ने के लिए, फिर as a thing we are giving the one. Okay, पास में लिखे. अब इन दोनों को टेस्ट करेंगे. We are testing this simply is through because we are confusing ना. Entire all the buttons are changed and run. Now it's just a change 3 buttons 1 2 3. It's good here. Without that and operator executed. मैंने दिखाया आप लोगों का 1 2 3 क्या हो रहा? 1 या तो 2 3 एक ही डिजिट दिखाई दे रहा. अब एंड ऑपरेटर लिखने की वजह से क्या हो रहा? 1 देखिए 2 पास में आ गया 3. ओके, सपोज आई एम रिमूविंग हियर 321. सपोज 3 2 1. So due to that reason, in last class yesterday we are writing this code like with the help of ampersand and symbol string concatenator. Okay, so what happened? 3 ka 4. So here very easy. Once you are entered one coding in one button, copy paste. But take care 4 buttons you can type the 4. 5 purpose you are changing the 5. When you are pressing 6 button will be appear. Then 7 7th 8 8 will 9 purpose 9 and last the cursor here. Suppose you are forgotten where you are. Again, no problem. You simply click on the button. The cursor will appear. This one is the command button 10. तो इसके लिए 0 करना है. नाम तो हमने फ्रंट में लिखा है 3. Okay. So if you are clicking here, now cursor will be means this one is the 0 button. Okay. Then what about 1 2 3 4 5 6 7 8 9? Okay, we are cross checking. Look at here.
0 also. I am running 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Sometimes your front end you are given 7, but you are clicking the 7, 8 will be displayed. So that is cross checking. Okay, what I am telling here, I am removing the text box. Cross checking means, suppose if I am typing the 1 will be appeared, 2 3 4 5 6 7 8 9 0 digit पर click करते समय पर 0. That means our code is correct. Now अब इसको क्लियर करने के लिए लिखा ने सी के लिए डबल क्लिक. वी वांट टू क्लियर द टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर बॉक्स 1 डॉट इक्वल टू क्लियर, बस इतना. देन दैट इज फिनिश. अब हमने आप एक नंबर टाइप करने के बाद ऑपरेटर पर आ गए, तो हमने क्या लिखा उसमें एक्सेल शीट में लिखा, look at here friends, where we are already written. That is another one. Okay, so here suppose if you are clicking plus symbol, opt is equal to variable declare नहीं किया, opt is equal to L1 is equal to length of text box1 dot text. फिर फर्स्ट नंबर var text box, ये तो डिस्कस किया आप लोगों से. फिर वो नंबर भी डिस्प्ले होना है, मींस ऑपरेटर प्लस माइनस टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू text box1 डॉट टेक्स्ट. एंड जो भी सिंबल हमने कौन सी सिंबल टाइप करके आया हमें, प्लस, बस ये वाली एंड सिंबल है ना. ओके, देन सबसे पहले वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, एंटर दबाया मैंने, dim. देखिए फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर बी, L1 L2 OPTR रिजल्ट. लॉन्ग डिफाइन कर सकते हो एज इंटीजर, और dim str एज these variables are हो गया. ओके, फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर बी, टू ऑप्शन opt str एज ए स्ट्रिंग. सो L1 के लिए हम सॉरी प्लस ऑपरेटर के लिए लिखा है, तो मैंने एक्सप्लेन किया, आई वाज ऑलरेडी गिवन द एक्सप्लेनेशन. इफ यू आर रिटन वन ऑपरेटर ना, देन यू कैन कॉपी एंड पेस्ट इट. सो प्लस ऑपरेटर के लिए हमने लिखा है. सो फिर माइनस के लिए क्या करना है, अभी जाएंगे हम कहां पर, माइनस, लुक एट हियर, पेस्ट ऑप्शन 2, then here you can simply press the this minus symbol, then multiplication, option 3 star. okay, नहीं अभी स्क्रीन एक्सेल कैलकुलेटर पर डिस्प्ले करने के लिए x को टैप कर, डिस्प्ले पर्पस ओनली दिस वन. देन ओनली वन डिवीजन, paste. Here you can change the operator. That means what happened, 0 से लेकर 0 to 9 we are already completed, clear you are completed, then plus minus this one is completed, plus only is equal to is pending. Before pressing the is equal, if clear is working or not, we want to check it. Run, look at here, 1 2 3 4 5 6 whatever it may be, I want to clear the screen. 1 2, that's 1 3 2, clear is working. Then suppose two numbers के ऐड करके देखते हैं हम. 1 रिजल्ट के लिए लिखा नहीं हमने, we are not completed physical coding, but remaining buttons all are completed. That thing I want to show here, plus 3 2 1. अब is equal क्लिक कर दीजिए, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, रिजल्ट आएगा नहीं. There is no result because we are not completed the coding of the is equal. Okay, so that is our programmer level pending. We want to finish that result coding. मेरे कहने मतलब सारे बाकी बटन्स के लिए लिखा हमने, फिनिशिंग किया है. अब इज इक्वल टू कर्सर इज ब्लिंकिंग हियर. सो इज इक्वल टू लिखने के लिए लिखते समय पर कोडिंग MS एक्सेल में समझाया आपको. फर्स्ट सबसे पहले
हमने क्या करना है, str इज इक्वल टू text box1 डॉट टेक्स्ट। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ पूरा टेक्स्ट को हमने क्या किया, str वेरिएबल को ट्रांसफर किया। L2 लेंथ 2 इज इक्वल टू len ऑफ हमारा स्ट्रिंग कहां पर, वेयर इज आवर स्ट्रिंग, str वेरिएबल। ओके, L2 पता चल गया। देन अब b वैल्यू मींस b इज इक्वल टू val न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने के लिए mid अपना स्ट्रिंग का, और स्ट्रिंग इज अवेलेबल इन द स्ट्रिंग वेरिएबल। फिर पोजीशन क्या बताया हमने, L1 प्लस 2 कॉमा, फिर कितना डिजिट्स आना चाहिए, L2 माइनस L1। सर आई कंप्लीटेड विद इन द टाइम। So okay, value of mid string. I want to close this one also. If you are having some L1 के साथ 1 जोड़ने के, so that is called as number. Already find out the B also. अब क्या करना, select case within the bracket, case 1, then result, result is equal to a plus b plus b। case 1 copy paste, case 2 don't make confuse, अब कंफ्यूज मत हो जाइए, माइनस के लिए केस 3 मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार सिंबल, केस 3 हो गया। फिर केस 4 डिवीजन, एंड केस एंड सेलेक्ट, इनकी ऑप्शंस समाप्त हो गए। अब रिजल्ट प्रिंट करने के लिए text box1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू result, रिजल्ट को हम टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करना है। Already explained in MS Excel sheet. My time is also over. So friends, I was explained means 2 times. I want to run here form. So please look at here. 1, 2. First of all, we want to suppose clear. Simple digits. Single digits देखते हैं हम। 9 minus 5 is equal to 4. Can apply any digits means clarity purpose. I want to give a simple explanation. 8 plus single digit. Suppose then what happened? 17. Okay, clear. Suppose by 9 minus तो देख लिया, चलो कोई बात नहीं। 9 minus 2 7, clear. Plus minus, suppose 9 into, you can change any one, 7, 9 7 is 63. Okay, then division, single digit, we want to implement the single digit। 9 बार 9 नहीं, 8 minus 4, sorry 8 divided by 4 is equal to 2 आना चाहिए, 2। ओके, ये तो सिंगल डिजिट कंप्लीट। अब 2 डिजिट्स, यू प्लीज लुक एट हियर, 2 डिजिट्स ऑपरेशंस, 1 2 12 plus 3 4, then what happened, 46। okay, suppose you can consider any 8 2 digits, 56, then what happened, 8 minus 6 2, 7 minus 5 2, 22। okay, then into purpose you can consider small 2 digits numbers, suppose 2 digit 10 into 10, 10 tenders 100, सबको पता है, क्लियर। और 10 into 11 कितना, 121, पता नहीं, देखते हैं हम, 110। 10 into 11 110। okay, so then after that into is completed, 2 digits division, 2 digits में क्या, 50 divided by 25। okay, clear, divided by, you can give any 10 result। okay, 2 digits all are completed,
then you can give any 3-digit number plus you can give reverse number 3 आ जाएगा 4444 4 2 plus 2 4 3 plus 1 4 clear 7 8 9 1 2 3 1 1 again 11 फिर 1 है तो ओके देखिए 9 1 2 3 minus 23 0 7 8 9 4 5 6 बराबर आ जाएगा 6 3 7 minus 4 3 3 3 3 okay so what I'm telling here like this 123 into 2 clear कर देता हूँ भूल गया 1 2 3 into 2 2 3 जा 6 is 2 4 6 okay 4 5 6 in sorry clear 4 5 6 into can give 1 same number will be appear clear you can cross check it any number 159 into 4 4 9 जा 36 6 आना चाहिए 4 5 जा 20 plus 6 26 6 6 6 2 4 1 जा plus 4 plus 2 666 आएगा क्या 636 okay so friends division 3 digit purpose 1 2 5 divided by 5 for example 25 clear 450 divided by 50 100 में 2 times 400 में तो 8 plus 1 9 okay so this is the calculations operations now the time is exactly 11 o'clock so I don't give trouble to our enemy technical staff members Robin sir thank you so much thank you sir okay friends thank you for all of you who are joining today class in next class we will discuss remaining controls please join tomorrow कल का क्लास में जरूर ज्वाइन करिए नया कंट्रोल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे यानी रिमेनिंग जो कंट्रोल फॉर्म कंट्रोल्स हैं लिस्ट बॉक्स चेक बॉक्स कॉम्बो बटन रेडियो बटन like all these remaining options okay thank you for all of you thank you once again thank you Rubin sir Thank you, sir. Thank you so much. okay sir